Doing exercise 9. I think 9.4 we have finished. One doubt has been asked. So let us do D part. Actually, I think we have done D part. तो मैंने करवाया था क्लास में. बहुत लंबी. मैम ये इस पे वो डाउट मैम मैंने कल इसकी प्रैक्टिस की थी तो मुझे डाउट आ गया था इसमें. क्या डाउट है? वो थर्ड नंबर का कैलकुलेशन नहीं समझ आ रहा क्योंकि दिस इज वेरी लॉन्ग क्वेश्चन. अभी इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी तो सारा पीरियड ही निकलेगा. This is a very long question with a long you can say calculations. आप मुझे लिख के भेजना रिदम अपना डाउट. I will make it clear. ओके मैम. ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को सारा लंबी कैलकुलेशंस दोबारा सारी शो करनी पड़ेंगी. अब या तो आप मुझे स्टेप बता दो, मैं लिख के वहां से कंटिन्यू कर देती हूँ. मैं स्टेप बता देती हूँ. स्टेप बता दो. सौमिल का है. सौमिल, unmute yourself. Yes. So continue with the next concept of the chapter. 9.4 we have finished. We will start with identities. So let me tell you what is the meaning of identity. What is the meaning of identity? आइडेंटिटी का क्या मीनिंग है? अभी हमने बहुत सारी आइडेंटिटीज हम करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी. सपोज वी आर हैविंग एन एक्सप्रेशन which is true for all the values. मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा a plus b is equal to 2ab plus 3ab plus 3b square. अगर ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आप ए बी की कोई वैल्यू पुट कर दो, ए बी को 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, ए को 2 पुट कर दो, बी को 3 पुट कर दो, ए को 7 पुट कर दो, बी को 9 पुट कर दो, एनी टू वैल्यूज ऑफ ए एंड बी यू आर टेकिंग and the two sides get out to be equal, then we say that that expression is an identity. इसमें ऐसा नहीं है आपने a की वैल्यू 1 ली, b की वैल्यू मान लो 2 ली, तो इधर बना 3. a की वैल्यू आपने 1 ली, b की वैल्यू 2 ली, तो ये क्या बना 4 16. ये इक्वल नहीं है. हमने a और b की जब डिफरेंट वैल्यूज ली तो ये दो साइड्स इक्वल नहीं आई. इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है. What is identity? Identity is an expression in which first of all अपने hands down कर लो, पहले मेरे को करवाने दो, फिर जो डाउट होगा फिर then I will ask. Manasvi and Jen. First of all let me explain, then ask your doubt. Right? So when we are having such an algebraic expression जिसमें हम a और b की कोई वैल्यूज पुट करें और दोनों साइड्स हर कोई मर्जी वैल्यू पुट कर लो इक्वल आ जाएं, उसको हम बोलते हैं identity. That algebraic expression is known as identity. So we are going to start with identities for the further exercise. So I will tell you 4 identities which you have to remember as formulas. So let me tell you these 4 identities. So first identity I am writing, this is a plus b whole square. This is a square plus b square plus 2ab. या फिर आप 2ab वाली टर्म को बीच में लिख लो क्योंकि एक्सप्रेशन में 2ab बीच में होता है आगे. सेकेंड, a माइनस b होल स्क्वायर. दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. थर्ड, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दिस इज a प्लस b इंटू a माइनस b. अभी एक्सप्लेन करूंगी, अभी लिख रही हूँ. फोर्थ, x plus a into x plus b. This is equal to x square plus a plus b into x plus ab. So I have written 4 identity on the board which you have to learn as it is. What are these identities? In first identity we have learned
the square of sum of two numbers a plus b its whole square. How to open it? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 into दोनों नंबर का प्रोडक्ट 2ab प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर दैट मींस b स्क्वायर, राइट? सो द नेक्स्ट इज a minus b whole square. This is a square minus 2ab plus b square. What is the difference between these two? a square b square a square b square एक जैसे ही है. प्लस वाले में प्लस 2ab आएगा and minus वाले में we will be having minus 2ab. So these are the two identities. Firstly, a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square, and a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square. This is the difference. Only this is the difference. Here it is plus, it is minus. Now the next identity is a square minus b square. That means when we are having the difference of the squares of the two numbers, एक नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को कैसे लिखते हैं? Add both the numbers a plus b, then subtract both the numbers a minus b. So when we are having difference of the squares of two numbers like a square minus b square, एक नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, how to open this identity? Add the both numbers a plus b, subtract both the numbers a minus b. Next identity is x plus a into x plus b. इस आइडेंटिटी को पहचानने की थोड़ी सी कोशिश करो. क्या होती है आइडेंटिटी? दो ब्रैकेट्स होते हैं जिनमें पहला नंबर सेम होगा, x है कुछ भी है, फर्स्ट नंबर विल बी सेम इन बोथ ऑफ द ब्रैकेट्स एंड सेकंड नंबर विल नॉट बी सेम. पहली ब्रैकेट में a है, दूसरे ब्रैकेट में b है. हाउ टू आइडेंटिफाई? टू ब्रैकेट्स वी विल बी हैविंग इन व्हिच द फर्स्ट नंबर विल बी द सेम एंड द सेकंड नंबर विल नॉट बी द सेम. हाउ टू ओपन दिस आइडेंटिटी? लेट मी टेल यू. दोनों में से जो सेम नंबर है दोनों ब्रैकेट में उसका स्क्वायर, सेम नंबर कौन सा है? x. So we will be having x square. प्लस का साइन, जो नंबर सेम नहीं है उनको ऐड करो. a एंड b को ऐड किया, मल्टीप्लाई जो सेम नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो जो नंबर सेम है, दैट मींस x. प्लस का साइन, जो नंबर सेम नहीं है उनको मल्टीप्लाई करो. पहले अभी मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको लर्न करने का मेथड बताती हूँ. सेम नंबर का स्क्वायर, जो नंबर सेम नहीं है उनको ऐड करो, जो नंबर सेम नहीं है उनको मल्टीप्लाई करो. सम के साथ सेम नंबर और यहाँ पे प्लस. पहली बात तो ये कि सारी जगह प्लस आना, सेकेंड टर्म से पहले भी प्लस, थर्ड टर्म से पहले भी प्लस. यहाँ पे क्या आएगा? दोज हु आर नॉट सेम देयर सम इनटू द सेम नंबर. यहाँ पे क्या आएगा? दोज हु आर नॉट सेम देयर प्रोडक्ट. दिस इज द वे टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. नाउ वन थिंग आई वांट टू टेल यू, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलास इन बोथ द वे. जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ. समटाइम्स आपके पास क्वेश्चन में इधर वाली साइड होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और मैं आपसे पूछा करूंगी ये किसका फॉर्मूला है? यू विल टेल इट इज a प्लस बी होल स्क्वायर. समटाइम इन क्वेश्चंस ये वाली साइड होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड आई विल आस्क यू दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ विच, यू विल टेल दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर. Sometimes in the question we will be having sum of two numbers and difference of two numbers, that means a plus b into a minus b. I will ask you whose formula is this? You will say a square minus b square, and similarly this is x plus a into x plus b. अब sometimes क्या होता है, ये जो fourth identity I have written इसकी और फॉर्म आ जाती है. और फॉर्म कैसे? जैसे कि यहाँ पे आ जाए माइनस a, यहाँ पे प्लस. No need to create any kind of panic because there is no difference. Just to write the formula very very carefully. देखना जरा, सेम रहेगा क्योंकि सेम नंबर है. पहले ब्रैकेट के पहले दो नंबर सेम है, पहले नंबर सेम है और दूसरे नंबर सेम नहीं है. कैसे? एक्स स्क्वायर सेम नंबर प्लस का साइन, दोनों डिफरेंट नंबर्स का सम. अब जो डिफरेंट नंबर्स हैं उसको आपने ए एंड बी नहीं माइनस के साइन के साथ उठाना. दोनों डिफरेंट नंबर्स का सम इनटू सेम नंबर प्लस दोनों डिफरेंट नंबर्स का प्रोडक्ट माइनस ए इंटू बी, माइनस ए इंटू बी. ये बात याद रखनी है. कभी कभी क्या होता है, लास्ट वाले फॉर्मूले की मैं एक और फॉर्म बता देती हूँ, दोनों जगह माइनस आ जाता है. नो नीड टू क्रिएट एनी डिफरेंस, जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस दोनों नंबर्स का सम, बस हमने इनके साथ माइनस लगा देना. जैसे नंबर्स होंगे वैसे ही उनका सम उठा लेना इनटू एक्स.
जैसे नंबर्स होंगे वैसे उनको मल्टीप्लाई कर दें। मतलब कि अगर आपको एक फॉर्मूला आ गया, आप उससे बाकी के फॉर्मूलास लिख सकते हो। अगर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, कहीं भी कुछ है, डोंट वरी, यू पुट द नंबर विद द सेम साइन विच इज इन द ब्रैकेट। सो एक आइडेंटिटी को हमने 2-3 आइडेंटिटीज उससे जनरेट कर ली। सो अगेन आई एम रिपीटिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, ये देखो दोनों नंबर्स के स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 टाइम्स दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज a माइनस b होल स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a प्लस b, a माइनस b। व्हाट इज x प्लस a इंटू x प्लस b? x स्क्वायर प्लस नॉन सेम नंबर्स का एडिशन a प्लस b मल्टीप्लाई द सेम नंबर दैट मीन्स x प्लस नॉन सेम नंबर्स का प्रोडक्ट दैट मीन्स ab। So these are the identities. Why they are the identities? Because you put any value of a and b. आप a और b की कोई वैल्यू ले लो, 5, 6, 7, 8, any value, आपके पास ये दोनों sides equal आएंगी. If you take any values of a and b, both the sides will be equal. That's why they are called identities. ठीक है? तो हमारी जो 9.5 exercise है, that is truly based on these identities. So let us start exercise 9.5. कल आपको ये सारे फॉर्मूलाज, ये सारी आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, मैंने सुननी है सबसे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए 9.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स के पहले नंबर सेम और दूसरे नंबर्स भी सेम ही है। चलो कोई बात नहीं, अगर दूसरे नंबर सेम है, हमें यहाँ पे इस चीज को वो नहीं करना कि बाय द सेकंड नंबर इज आल्सो सेम, नो नीड टू क्रिएट पैनिक लाइक दिस। वैसे मैं सोच रही थी इसको मैं फॉर्मूला बना के ही करवा दूं, जस्ट अ मिनट वेट। इसमें अगर हम एक स्टेप कर दें तो आइडेंटिटी कोई और लिख सकती है। चलो देखते हैं। देखो जरा, ये सेम बेसिस है और पावर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। आपको पता है एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या कहते हैं, कि अगर बेसिस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर्स गेट एडेड। तो ये बन गया x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3, x प्लस 3 की पावर 2। विल यू एग्री विद मी टू दिस स्टेप? x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 3 की पावर 2। इज इट ओके? क्योंकि जब तक ये स्टेप नहीं क्लियर तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, इट इज ओके। सो मेनी रिएक्शंस आई एम गेटिंग। सो नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच आइडेंटिटी यू कैन अप्लाई हियर। किसी को कोई आइडेंटिटी यहाँ पे मिलती जुलती याद आ रही हो, एनी आइडेंटिटी जो इसके साथ मिलती जुलती अभी अभी हमने की। आंसर चाहे ना बताना, ये बता दो कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। एनीवन? ख्याति? Ma'am, it can be a plus b square. बिल्कुल ठीक। वी विल यूज द आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। When you are using some identity, you have to write it aside in exam. Now you see in the expression which number will work as a and which number will work as a b. First number will work as a and second number will work as b. देखो ध्यान से, पहला नंबर a का काम करेगा और दूसरा नंबर b का। First number will work as a, second number will work as b. Is it clear? First number working as a, second number working as b. चलिए पुट करें इसको, a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस का साइन 2 2 ab मतलब मल्टीप्लाई, a मतलब x, b मतलब 3, प्लस का साइन b स्क्वायर मीन्स सेकेंड नंबर का स्क्वायर। If you know the identity and you have written it rightly, then it will be very easy for you to replace the values. आपके पास है a स्क्वायर, a की जगह x,
एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन 2 2, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ए की जगह एक्स, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, बी की जगह 3, प्लस की जगह पे प्लस, बी का स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर। इज इट ओके? तो ये बना आपका एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6x, 3 का स्क्वायर, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया ना, दिस इज आंसर। फर्स्टली आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगनी है, फिर उस आइडेंटिटी का फॉर्मूला लिखना है, फिर आपने देखना है कि हमारे एक्सप्रेशन में ए एंड बी का रोल कौन प्ले करता है। चलिए सेकेंड यू विल डू योरसेल्फ, सेम है, आई एम टीचिंग द थर्ड, साथ साथ होमवर्क पार्ट नोट करते जाना। सेकेंड होमवर्क, सेकेंड पार्ट, आई एम टीचिंग थर्ड पार्ट। दिस इज 2a minus 7 into 2a minus 7। देखो ध्यान से, 2a minus 7 वन टाइम, 2a minus 7 वन टाइम, तो कितनी बार हो गया? पावर्स ऐड हो जाती होती ना मल्टीप्लाई में, बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, पावर्स एडेड, तो ये बन गया 2, 2a minus 7 की पावर 2। तो आई थिंक यू माइट हैव रियलाइज्ड। यस सक्षम? मैम मैं एक बार मैं रिपीट कर दूं, कौन से होमवर्क पार्ट्स हैं? अभी इसको मैं करवाऊंगी, सेम है इसके जैसा। लिसन, सो विच आइडेंटिटी वी आर यूजिंग? a minus b होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। पहले तो ये पता करना कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, फिर साथ ही उस आइडेंटिटी का आंसर भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे a का रोल कौन प्ले करेगा? दिस नंबर, फर्स्ट नंबर विल प्ले द रोल ऑफ a and the second number will play the role of b. First number will play the role of a and the second number will play the role of b. ठीक है, देखें जरा फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो लगा, a स्क्वायर 2a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे 2a इंटू बी की जगह पे 7, प्लस का साइन दैट मीन्स प्लस का साइन, बी स्क्वायर बी की जगह पे 7। अब ये मत सोचना कि 7 के साथ माइनस आएगा, ये माइनस फॉर्मूले का है। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a इज 2a, b इज 7, a स्क्वायर दैट मीन्स 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a दैट मीन्स 2a इंटू b दैट मीन्स 7 प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स 7 स्क्वायर। लेट अस सॉल्व इट। 2a का स्क्वायर, जब किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर होता है तो वो स्क्वायर दोनों को मिलता है। घर में मिठाई का डिब्बा होता है, सब सारे खा सकते हैं, ये नहीं कि आप अपनी गोद में रख के कहो कि मैंने ही खाना है सारा। ठीक है ना, तो अगर उस किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर है वो दोनों को मिलेगा। 2 को मिला 4 बन गया, a को मिला a स्क्वायर बन गया, 2a का होल स्क्वायर विल बिकम 4a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे होएगी? लाइक टर्म्स विल बी मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 7 जा 28, साथ में 8 प्लस 7 स्क्वायर मीन्स 7 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, दिस इज 14। यस जयंत? मैम आपने मैम स्टार्टिंग में बताया था मैम वो पिछले चैप्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में, मैं एक बार समझा दो, समझ नहीं आया। पिछले चैप्टर की प्रॉपर्टीज? कौन सी पिछले चैप्टर? मैम प्लेइंग विद नंबर्स, वो बता देती हूँ, किसी बच्चे ने डाउट पूछा था तब बताया था, बता देती हूँ, पहले इस चैप्टर को देख लो। चलिए, सो नेक्स्ट आई एम डूइंग फोर्थ पार्ट। 3a minus 1 by 2 into 3a minus 1 by 2, दोनों सेम सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर 1 1 2 पावर हो गई।
ठीक है, now which formula? A minus b whole square, a square minus 2ab plus b square. This will work as a and this will work as b. So a square, that means minus 2 into a, that means 3a, into b, that means 1 by 2, plus b square, that means 1 by 2 का square. This becomes 3 का square 9, a का square a square. अब इसको आपने सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो मीन्स सारे मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे हो, अगर कटिंग पॉसिबल है तो कर दो, 2 कट माइनस 3a प्लस 1 by 2 का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. अगर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर हो तो वो ब्रैकेट वाले सारे नंबर्स को मिलता है. If there is a square in on some number, it will be given to each and every individual digit. ठीक, थोड़ा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, नई चीजें हैं, राइट? अभी तक मैंने आपको सेकंड पार्ट होमवर्क दिया एंड थर्ड पार्ट. सेकंड थर्ड आपका अभी तक होमवर्क है, ठीक है. लेट अस स्टार्ट विद द फिफ्थ पार्ट. Fifth part is 1.1 m minus 0.4 into 1.1 m plus 0.4. Any student who can identify the identity from here? कोई बता सकता है मुझे कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है यहाँ पे? Anyone? Which identity we will use here? Viran, you tell. Viran, which identity we use? Viran, unmute yourself. Kritika, you tell. जानवी, बच्चे अनम्यूट करो अपने आप को. हाँ जी, जपू जी, यू टेल. जपू जी, स्पीक अप. x minus a x plus b equals to x square plus minus a plus b multiplied by x plus minus ab. नहीं, उसमें तो तब करनी होती है जब पहला नंबर सेम हो और दूसरा सेम ना हो. यहाँ पे तो दोनों सेम है. हाँ जी कृतिका, यू टेल. a plus b a minus b. बिल्कुल ठीक. a माइनस b, दोनों नंबर सेम, एक बार दोनों का माइनस और एक बार दोनों का प्लस. किसका फॉर्मूला होता है ये? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. This will work as a 1.1 m square. This will work as b, that is 0.4 square. इसको स्क्वायर करोगे 1.21 m square और इसको स्क्वायर करोगे, this will 0.16 answer. So this is all about for today's lecture. We'll continue tomorrow.